Right, hi everyone, good morning. Hi Chitraksh, hi Harsh. Can you guys see the screen? Good morning, Dikshant. Hi Siddharth, hi Riya. Morning, Purva. Alright, great. लास्ट क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया था रिवाइज करा आप लोगों ने? You tried the questions that I gave you? बोर्स मॉडल एंड बोर्स मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. Any doubts, any questions in those conceptual parts? हाँ, मैं एक मिनट अनम्यूट कर देता हूँ. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. हाँ, बोलो चित्राक्ष. Sir, so I have a doubt from the theory part, not from the questions part. हाँ, बोलो ना. Sir, so in the last class, you told us that the negative sign in energy of the electron in the nth orbit, that is minus 13.6 into 10 to the power into n square z square upon n square. So that was the formula. In the formula, you told us that the negative sign means it is an attractive force between the electron in the nth orbit and the nucleus. So, sir, my question is, does the electron collapse into the nucleus because of the attractive force? नहीं नहीं, सो यहाँ पर आप नोटिस करना फोर्स तो बैलेंस्ड है. ठीक है. व्हेन वी डिड द डेरिवेशन यहाँ पर यू रिमेंबर देयर वाज दिस इक्वेशन ऑफ फोर्स बैलेंस. Yes, sir. That there is a electrostatic force of attraction and there is a centrifugal force. ठीक है. ये फोर्स बैलेंस हो रखे हैं आपस में. However, still when we say that electron has a certain amount of energy, kinetic energy plus potential energy, what we observe or what we came up with this is that negative sign of potential energy means that there is an attractive nature or there is an attractive force between the electron and nucleus. So if I have to say take the electron further away from the nucleus, I will have to do work. I will have to supply energy. If the electron comes closer to the nucleus, then the energy would be released. ठीक है. Okay, sir. So So it is. one more doubt. One more. हाँ. Sir, is black hole an example of a black body? नहीं नहीं नहीं, ब्लैक होल would be an example of radiation absorbing. ठीक है. It will be absorbing on radiations but it isn't emitting. ब्लैक बॉडी में कैसा है? It is absorbing as well as emitting all different wavelength or frequency of radiations. Okay, sir. All right. So आज का अपना डिस्कशन बोर्स मॉडल का कंटिन्यू करते हैं on the same lines that we had done in the previous class. However, आज मैं आपको थोड़े से और terms introduce करवाऊंगा so that you can answer a variety of questions. ठीक है. हाँ हाँ, मैं पिछला होमवर्क भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में along with the DPP. Right? I think there is a doubt session scheduled. I think so. Tomorrow itself, right? हाँ, correct. तो कल के डाउट सेशन में I'll be discussing the homework as well as the previous homework as well as जो मैं आज आपको थोड़ा सा पढ़ाकर होमवर्क दूंगा ना, आप प्रायोरिटी पे ट्राई करना वो क्वेश्चंस एंड देन लेट्स डिस्कस देम आल्सो टुमारो. ठीक है. ऑल राइट. बोलो बोलो. Sir, the potential energy, that's K into Z into minus A upon R square, right?
Because last class, if I see the notes, when you wrote total energy is equal to K, kinetic energy plus potential energy, there you wrote upon R. So I was अपॉन आर है, अपॉन आर स्क्वायर नहीं है, confirming. फोर्स के टर्म में अपॉन आर स्क्वायर आता है। ठीक है, जो फोर्स का टर्म होता है ना वहां पर डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है, पोटेंशियल एनर्जी में आर ही रहेगा। दैट इज हाउ वी डिफाइन द Okay, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Okay, sir. ठीक है, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे आप नोटिस करो, हम लोगों ने रेडियस और एनर्जी इन दोनों का रिजल्ट निकाला था, एंड यू रिमेंबर द रिजल्ट। ना उसका एक विजुअल आपके सामने मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। वी कॉल इट एज रेडियस डायग्राम एंड एनर्जी डायग्राम। सो रेडियस डायग्राम कैसा रहेगा? एज यू कैन सी दैट आर was proportional to n square, right? So r proportional to n square में if I was to visually understand the distance of the orbits from the nucleus, तो वो कैसा दिखेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो, लेट मी जूम इन ओवर हियर। न्यूक्लियस से लेट से x डिस्टेंस पर पहला ऑर्बिट है, तो फिर 4x डिस्टेंस पे दूसरा ऑर्बिट होगा, 9x डिस्टेंस पे तीसरा ऑर्बिट, एंड so on so forth. So can I make this statement that as we move away from the nucleus, the radius of the orbit increases as well as the gap, or you can say distance between successive orbits increase? Is this statement okay with everyone? Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही एक एनर्जी डायग्राम भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इनफैक्ट ये ज्यादा क्रूशियल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम यूज ऑफन। ठीक है, आगे हम लोग काफी जगह इसको यूज करेंगे। दिस इज यूज्ड मोर, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। एनर्जी का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने बताया था, कैलकुलेट करा था लास्ट क्लास में, -13.6 z²/n² eV, right? So if I start putting down the values of energy of orbits one after the other, right, and say ये एक scale of energy है, like vertically एक scale of energy मैं यहाँ पे draw कर देता हूँ। So can you see how is the trend? फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है -13.6 eV, सेकेंड ऑर्बिट का -3.4 eV, राइट? कैसा आया -3.4? 13.6 डिवाइड बाय 4 करके, देन 13.6 डिवाइड बाय 9 करके, and so on so forth. So two important observations are coming from here. One, as we move away from the nucleus, energy increases, energy of the electron, or we can say energy level increases, because हम लोग साइन के साथ बोलते हैं -3.4 will be greater than -13.6. ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको? Yes, sir. And another statement, if you look at the gap, the energy gap between successive orbits, so जैसे पहला और दूसरा ऑर्बिट के बीच में गैप कितना है? 10.2 eV का। सेकेंड और थर्ड के बीच में गैप कितना है? 1.9 eV का। दिस एनर्जी गैप, दिस इज डिक्रीजिंग, राइट? सो ये दोनों डायग्राम्स अब आपके लिए सेंस बना रहे हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली? Sir, I had a doubt. हाँ हाँ बोलो। Sir, why is the distance between first and second orbit so much and then it decreases? In second and third, it's very less, while in first and second, it's more. आप एनर्जी डायग्राम के बारे में बोल रहे हो ना? Yes, sir. राइट हैंड साइड वाला डायग्राम जो है। तो आप देखो ना, यहाँ पर जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी उससे हमें ये समझ में आ रहा है ना, दैट इज व्हाट वी आर trying to get as an answer from the formula that we have calculated.
that energy of an orbit is minus 13.6 square. तो जैसे जैसे मैं n बढ़ाता जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये वैल्यूज आती जा रही हैं. फॉर्मूला से वो दिख रहा है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाया वो चीज. Okay. ठीक है. एज वी गो फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हाट इज द एनर्जी? It's zero. इट विल अप्रोच जीरो. Zero. Hmm. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग अब मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाता हूँ. एंड ड्यूरिंग दीज क्वेश्चंस देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई विल टीच, जो कि क्वेश्चन से ही लर्निंग आती है. ठीक है. सो ध्यान से उन चीजों को नोटिस करना एंड हाईलाइट द मिस्टेक्स दैट यू वुड मेक. जैसे एक क्वेश्चन है पहला आपके सामने. An electron in atom jumps in such a way that its kinetic energy changes from x to x by 4, and I'm asking you what will be the change in its potential energy. Now, do you remember the relationship between kinetic energy and potential energy that I had taught you in the last class? Kinetic energy is equal to minus 2 potential energy. Correct, that was the relationship. अब उसको यूज करके आगे बताओ कैसा रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर. करेक्ट खुश. हाँ. रेडियस डायग्राम में क्या नहीं समझ में आया नयन आपको? But I understood the result of it, but I got slightly disconnected in the start of it where you were explaining how it's derived. नहीं, वो तो अपन ने like r proportional to n square करा था ना. The result we had derived in the last class itself, right? So if the radius of the first orbit is x, the radius of the second orbit would be 4x, third orbit would be 9x, and so on so forth. तो आप इन बीच में गैप देख रहे हो, यहाँ पे गैप 3x का था, यहाँ पे गैप 5x का हो गया, and so on so forth बढ़ता ही जा रहा है. That is what I have represented in form of this radius diagram. Yes, I got it. Thank you. Okay. दुर्गेश नहीं, करेक्ट नहीं है आपका. हर्ष आपका करेक्ट है. नहीं फैनल. हाँ. पूर्वा आपका करेक्ट है. नहीं कार्तिक. ठीक है. एंड जिस जिसका करेक्ट इनकरेक्ट आ रहा है ना, अभी जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा तो हाईलाइट करना व्हाट इज द केयरलेस मिस्टेक दैट यू मेड. हाँ. गरिमा आपका करेक्ट है. प्रणव, महक नहीं, नॉट करेक्ट. नहीं दीक्षांत. हाँ. अभी आपने ठीक करा है कार्तिक. नहीं. ज्योत, आर्य, रितंबर नहीं, नॉट करेक्ट. हाँ. अभी आपने सही दिया है ज्योत. राइट नयन. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लस 3x/2. ठीक है. कैसे होगा आपको रिलेशनशिप याद होना चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप आपको याद है फॉर अ बोर्स एटम. तो ये रिलेशनशिप हम यूज करेंगे. अब अभी यहाँ पर नोटिस करो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी x बोली जा रही है, तो फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 2x माइनस 2x हो जाएगी, राइट. फाइनल काइनेटिक एनर्जी x/4 बोली जा रही है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस x/2 हो जाएगी. करेक्ट.
अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये ध्यान में रखना, दिस इज अ लर्निंग फॉर यू। चेंज, ये जो हम लोग ऐसे डेल्टा साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दैट चेंज इज ऑलवेज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, दैट इज अ कन्वेंशन दैट यू हैव टू फॉलो थ्रू आउट। सो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा पी इज इक्वल टू minus x by 2 minus minus 2x, and based on that your answer comes as plus 3x by 2, ठीक है। तो जिसका गलत आंसर आ रहा था या कोई दूसरा ऑप्शन आ रहा था, कहां पर आप लोगों ने मिस्टेक करा, वेयर इज इट दैट यू मेड दैट एरर? या तो ये फॉर्मूला में एरर करा होगा या फिर चेंज लिखने में एरर करा होगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना कहां पर वो गड़बड़ करिए एंड नोट इट डाउन, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट लर्निंग अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको मिली है वो यही है, चेंज इज ऑलवेज रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज एन इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर यू, ठीक है। हाँ हाँ आर्यन, आपका भी थॉट प्रोसेस सही है। सो आर्यन का एक क्वेश्चन है, लेट मी put it in front of everyone. Can we find the change in kinetic energy and then multiply it by -2, right? So you can do that, Aryan. कैसा है यहाँ पर अपना रिलेशनशिप था, पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो मैं दोनों तरफ डेल्टा लगा देता हूँ, ये डेल्टा पी हो जाएगा और ये -2 टाइम्स डेल्टा के हो जाएगा, राइट। ये मैंने दोनों तरफ डेल्टा लगा दिया, डेल्टा का मीनिंग क्या होगा, चेंज। तो यस, यू कैन वेरी वेल डू दैट, ठीक है। क्लियर है आर्यन? ओके, नाउ एक और क्वेश्चन ट्राई करो, एंड इसमें रिमेंबर the simplified formula that we had used in photoelectric effect for energy of photon when written in electron volts per unit, and give me an answer. Determine the maximum wavelength of photon required to eject electron out of hydrogen atom, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में इनिशियली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है एंड मुझे उसको इजेक्ट करना है, इजेक्ट करना है मतलब आई हैव टू टेक इट फार 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 अवे। तो कितना एनर्जी का फोटोन सप्लाई करना चाहिए?
ऑलराइट, निकाला आप लोगों ने? हाँ, अप्रोक्सीमेट आंसर भी दे सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि एकदम ही एक्यूरेट आंसर देना है आपको। फ्रैक्शन में दे दो, फ्रैक्शन में भी चलेगा, आई डोंट माइंड। आई वांट टू चेक वेदर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया। थोड़ा मैं हिंट दूं, व्हाट इज इट दैट वी वांट टू डू? We want to eject the electron, we want to take it from n equal to 1 to n equal to infinity, right? So energy change लाना है, and वो energy change कहाँ से आएगा? Photon से, right? So energy of photon is the energy change that is required. E final minus E initial. Final is 0 and initial was minus 13.6. So you get that energy of photon is 13.6 eV, which you can, because it is in eV का unit, you can write it as 12400 upon lambda in angstrom. हाँ, करेक्ट राजवीर, करेक्ट महक। सो इससे आपका वेवलेंथ आ जाएगा अराउंड 911 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, अभी इसी के So साथ I didn't understand how E final became 0. E का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम nth ऑर्बिट? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। Yes, sir. अब n का वैल्यू जो अगर है वो अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये E का वैल्यू क्या रहेगा? इट विल अप्रोच 0, डिनोमिनेटर में n है ना, Yes, sir. तो वहीं से हमने ये कंक्लूड करा दैट फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n दैट इज लाइक आउट ऑफ द एटम, राइट? आउट ऑफ एटम का मतलब क्या हो जाएगा? फार फार अवे। अभी समझ में आया? Understood, sir. Sir, हाँ हाँ, I didn't understand why we use this formula, like delta E formula over here, and not that NHC by lambda formula. व्हाई डिड वी यूज डेल्टा ई फॉर्मूला? Yes, sir, and not that NHC by lambda formula. यानी आप यूज कर सकते थे ना। देखो, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो इस इक्वेशन में लाया कर रहा है। यहाँ पर इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज द एनर्जी सप्लाइड थ्रू द फोटोन, Yes, sir. which is equal to right hand side. What does right hand side mean? It is the Change in energy. right, the energy required to eject the electron or change in energy of the electron that is going to happen, Yes, sir. right? ये right hand side कैसे compute करा? बोर्स मॉडल से। Yes, sir. और लेफ्ट हैंड साइड कैसे कंप्यूट करा? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से हमने सीखा था दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc by lambda, Yes, sir. करेक्ट? अब वो hc by lambda को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की यूनिट में सिंपलीफाई कर सकते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना 12400 upon lambda in Yes, sir. Got it. Yes, sir. Got it. ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ आर्यन, हम लोग लिमिट्स के टर्म में बात करते हैं। 1/infinity इज समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड, डेफिनेटली मैथ के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे एकदम, बट यहाँ पर व्हाट वी आर सेइंग इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लिमिट्स दैट अगर डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू अ लार्ज वैल्यू देन द ओवरऑल वैल्यू बिकम्स क्लोज टू 0 ओनली। ठीक है, In the previous question of the angstrom, where we had to find the maximum wavelength required to eject the electron, in that one, the answer you got is approximate, right? करेक्ट करेक्ट, मैंने ऐसा अप्रोक्सीमेटली का साइन यूज कर लिया। Okay. हाँ ठीक है राजवीर, आपका आंसर करेक्ट है, राइट चित्राक्ष?
दुर्गेश नहीं, आपका करेक्ट नहीं है। हर्ष खुश आपका करेक्ट है। महक आपका नहीं, करेक्ट तो नहीं है। इसमें कैसा है अगेन, आर यू एबल टू विजुअलाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यहां पर बोला जा रहा है that the electron is jumping from n equal to 2 to n equal to 1. Correct? Now 2 was higher energy, 1 was lower energy. तो higher energy से lower energy जब आ रहा है, jump कर रहा है electron, then it is going to release energy and release that energy in form of photon. Right? Photon emit होगा. Right? इतना visualization clear है आप लोगों को? अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन में फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी दैट इज गोइंग टू हैपन। चेंज इज गोइंग टू बी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, बाय कन्वेंशन हमेशा ऐसे ही लिखने की आदत डालना। चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल क्या है? -13.6 एंड इनिशियल कितना था एनर्जी लेवल? n इक्वल टू 2 पर -3.4 eV। तो चेंज कितना आ गया? -10.2 eV। ठीक है। नाउ अब ऐसा मत करना दैट ये जो चेंज था इसको एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वेट कर दो और 12400 अपॉन लैम्डा निकाल दो और लैम्डा की नेगेटिव वैल्यूज रिपोर्ट करने लग जाओ। वेवलेंथ नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, वेवलेंथ नेगेटिव नहीं होता है, वेवलेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर है ये सिग्निफाई कर रहा है दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। जब भी हम लोग ऐसे चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ एनर्जी के बारे में स्पेशली, चेंज ऑफ एनर्जी में अगर पॉजिटिव साइन रहेगा जैसे ऊपर वाले केस में था, ठीक है, यहाँ पर जब आपने कैलकुलेट करा तो ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है चेंज का, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करने पर। व्हाट वुड दैट पॉजिटिव साइन मीन? ठीक है, यहाँ पर द पॉजिटिव साइन वुड मीन दैट द एनर्जी इज अब्सॉर्ब। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा +13.6 eV, right? So this plus would mean energy absorbed. ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड से आप वेवलेंथ ऑफ फोटोन अब्सॉर्ब निकालते हो। वैसे यहाँ पर भी जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, चेंज इन एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हो, ऑलवेज फॉलो द कन्वेंशन फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये आगे भी बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड व्हेन यू डू दैट you come up with a negative sign for the change, which means that it is energy released. Now if you have to determine the energy of photon, just focus on the magnitude. Okay, that the magnitude of energy that is released is 10.2 eV, and now you equate 12400 upon lambda in angstrom to 10.2 and you will get the answer of the wavelength of the photon emitted. ठीक है, समझ में आया? Yes. ठीक है, ये छोटी छोटी लर्निंग्स जो हैं ये देखो क्वेश्चन से ही आती हैं, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीवर्क और रीसॉल्व दीज क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास। ठीक है, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बट मैं बार बार स्ट्रेस करता रहूंगा दैट ऐसा मत समझना दैट सुबह 8 से 9:30 क्लास हो गई तो हमारा आज का काम हो गया, अब उसके बाद जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब आके बैठ जाएंगे और फिर से शुरू हो जाएंगे। You have to put dedicated time in self study also. जो क्वेश्चन, एंड इट इज नॉट जस्ट केमिस्ट्री, आई होप आप फिजिक्स और मैथ्स में भी कर रहे हो, जो क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स आपको क्लास में करवाए जाते हैं, यू आर रीडूइंग देम एट होम एंड रीडूइंग बाय योरसेल्फ। ऐसा नहीं ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर रहे हो। एंड उस एक्सरसाइज से आपको ये समझ में आएगा दैट यू गॉट द कॉन्सेप्ट, यू गॉट द अप्रोच ऑफ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट। अगर नहीं आता है तो मतलब ठीक है, आपको जरूरत है रिकॉर्डिंग वापस देखने की या फिर डाउट डिस्कस वापस करने की कि सर मुझे समझ में नहीं आया कैसे करा।
बट वो एक्सरसाइज जब तक आप करोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा, और फिर वो क्या होगा, एक साथ पाइल होते होते बैकलॉग बनता चला जाएगा। ठीक है, चलो अब ये जो क्वेश्चंस है बोर्स मॉडल के जो हमने देखे, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और कैसे बढ़ाया जाता है, कुछ फैंसी नए टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे यू विल कम अक्रॉस दीज टर्म्स इन द क्वेश्चन which will make them a little bit more difficult for you to comprehend the question. तो इन टर्म्स को एक एक करके हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे, सो दैट जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो उसमें आप ये टर्म्स को रिकॉग्नाइज करके कॉम्प्रिहेंड कर सको। पहला टर्म नोटिस करना, इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। व्हाट डज दैट मीन? लोएस्ट एनर्जी स्टेट और n equal to 1 ऑर्बिट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू विल बी डूइंग सम क्वेश्चन, तो उसमें आपको लेट से इस तरीके से पूछा जाए व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या आंसर रहेगा आपका? व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम? 0.529 into 1. So it will be simply asking you the first orbit का radius, and that you know is 0.529 angstrom. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना? इट इज सिंपल एंड क्लियर। Okay. Then there is another term called as excited state. Excited state is a term that is used for all the other energy levels or orbits that are higher energy. ठीक है, other than the ground state, जो भी higher energy levels हैं उनको हम लोग excited state बोलते हैं। अब इसमें एक नोमेनक्लेचर फॉलो होता है, किस तरीके से, जो सेकेंड ऑर्बिट होगा उसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट को बोला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट को बोला जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, सो nth ऑर्बिट विल बी कॉल्ड एज n-1th एक्साइटेड स्टेट, or you can say the n+1th orbit will be called as the nth excited state. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, एक मिनट मुझे आंसर रिमूव कर लेने दो, जस्ट लेट मी रब द आंसर। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दो।
Correct. So many students have been able to give the correct answer. It is option A. जैसा आपने यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लिया होगा, राइट? पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप आपको पता है. So potential energy minus 6.8 eV दिया हुआ है, तो total energy comes out to be minus 3.4 eV. And if you use the formula, it comes or gives you the value of n as 2. Now that will mean the second orbit or the first excited state. ठीक है, तो ये cautiously use करना रहता है क्योंकि options इस तरीके से मिलेंगे that आप गलती करो. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन नहीं मार्क करना था, वो गड़बड़ हो जाएगा. दैट विल बी इनकरेक्ट बिकॉज ये पूछा है कि इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes. ओके. देन यहाँ पे नोटिस करना आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल और बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, ये टर्म भी कई बार क्वेश्चंस में आएगा, पूछा जाएगा. तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक बार यहाँ पे नोटिस करना. हाँ नहीं, सो इसका डेफिनेशन होगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to take electron from ground state, that is n equal to 1, to out of the atom. ठीक है, आयोनाइजेशन करने का मतलब क्या होगा, आयन बनाना. आयन बनाने का मतलब क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देना ताकि जो बचा हुआ स्पीशीज है वो एक आयन हो. सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट to out of the atom, that is n equal to infinity, is called as the ionization energy of that atom or that ion. Okay, so for example, let's say if I ask you what is the ionization energy of hydrogen atom, तो आप मुझे बोलोगे कि ठीक है n equal to 1 से n equal to infinity लेकर जाना है, right? So what would be the change in energy that will be happening? 0 minus 13.6, that is 13.6 eV. That is the change that is going to happen. The plus sign indicates that it is energy absorbed, and this is what is going to be called as the ionization energy of the hydrogen atom. ठीक है, say if I ask you ionization energy of helium plus ion कितना होगा? What will be the ionization energy of helium plus ion? What will be your answer? EV में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की यूनिट में बता दो. Correct, 54.4 EV, right? 27.2 कैसे दे रहे हो आर्यन? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर रहेगा ना. तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी रहेगा वो माइनस 13.6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, दैट इज माइनस 54.4 EV रहेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल
say that the ionization energy is 54.4 eV प्लस साइन के साथ में. क्यों माइनस साइन नहीं लगेगा कार्तिक? आप यहाँ नोटिस करो ना, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना. यस सर, वो गलती से पॉजिटिव में आया. करेक्ट करेक्ट. अच्छा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, नोटिस करना, किसी क्वेश्चन में कई बार ऐसे बोल दिया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताओ. व्हाट डज दैट मीन? आयोनाइजेशन एनर्जी of a particular state of an atom or ion is the minimum energy required to take the electron from that state to n equal to infinity. अभी जैसे हम लोग सब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन नेचुरली किस ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है? द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट, दैट इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज द ग्राउंड स्टेट. ठीक है. बट कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया दैट मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ से सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम या थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन ऐसा निकालना है, तो उसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? देन वी विल रीड इट इन दिस वे दैट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट ऑर्बिट और दैट एनर्जी लेवल और दैट स्टेट टू n इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. सर ये वाला तो खैर अभी हमने देख ही लिया. ये वाला क्वेश्चन आंसर करो. हाँ हाँ बोलो. सर पर आपने डेफिनेशन में बोला कि n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी ले जाने को ही आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं ना, तो इसलिए हाँ हाँ हाँ, पर्टिकुलर स्टेट के. मैंने एग्जैक्टली वही तो बोला दैट आप इन दोनों का लैंग्वेज नोटिस करो. ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था उसका लैंग्वेज है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+. अगर मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूँ तो इसको आप कैसे रीड करोगे? इसको आप रीड करोगे दैट लिथियम 2+ का इलेक्ट्रॉन मुझे इजेक्ट कराना है. अब लिथियम 2+ का इलेक्ट्रॉन नेचुरली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? n इक्वल टू 1 में, फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहेगा. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में प्रेजेंट रहेगा. तो यहाँ से मुझे उसको इन्फिनिटी पे लेके जाना है. ठीक है. And then you will do the calculation. But sometimes in questions there is this energy, ionization energy of a particular orbit is being asked. जैसे for example यहाँ पर in the second example notice the language. ये पूछ रहा है tell me the ionization energy of the second orbit of lithium 2+. This is what it is asking. Correct? तो अब इसको आप कैसे रीड करोगे? You will read it in this way that amount of energy required to take the electron from that orbit to outside the atom. समझ में आया अभी? अब आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे. अश्लेषा नेगेटिव साइन नहीं आएगा. देखो आपने साइन में फिगर आउट करो. हर्ष आपका आंसर करेक्ट नहीं है. बाकी लोगों का आंसर ठीक है. नहीं दुर्गेश आपने भी गड़बड़ कर दिया. कैसे रीड करना है इसको? I have to take the electron from n equal to 2 to n equal to infinity, right? So energy final minus energy initial. फाइनल तो 0 है और इनिशियल कितना रहेगा? -13.6 into 3 square upon 2 square. लिथियम 2+ में z का वैल्यू 3 रहेगा ना, तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 30.6 eV. समझ में आया ये टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी? Yes, sir. ठीक है. अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा है क्वेश्चन में इन द डिटेल्स, सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज करा है, तो कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है? दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट से बाहर ले जाना है एटम को. बट अगर
किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा लिख दिया दैट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन उसको कैसे रीड करना है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, सो ये सब चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, सी दीज आर नॉट सम न्यू थ्योरी दैट आई एम टीचिंग यू। ये कैसा होता है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके मैं आपको यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब आप ऐसे ढूंढोगे तो आपको किसी बुक में शायद ये टॉपिक नहीं मिलेगा। यू विल नॉट कम अक्रॉस सच टॉपिक इन say your booklet or your NCERT or some other reference book that you will be looking at, क्योंकि कुछ लर्निंग्स क्या होती हैं क्वेश्चन से ही डेवलप होती हैं। सो अब क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे टर्म्स यूज होते हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। तो इन टर्म्स को मैं आपके सामने सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग क्वेश्चंस यू आर अवेयर अबाउट दीज टर्म्स। ठीक है, एक एक करके आते रहेंगे ये टर्म्स, देखते रहना, नोटिस करते रहना। ठीक है, एक और टर्म आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छा, आर्यन का एक डाउट है, ये डाउट है आर्यन का, इफ दे आस्क टू फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाउट नोटिस करना आर्यन, is Li plus a single electron system? So is Bohr's model valid over it? Can we use then any of the formula? Not really. ठीक है, so हम लोग उसके बारे में बॉदर नहीं करेंगे अभी, हम लोग इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलराइट, एक्साइटेशन एनर्जी नोटिस करना। एक्साइटेशन एनर्जी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर यू टू रिमेंबर। कैसा लिखा है यहाँ पर? एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट to some higher state is called as the excitation energy of that state. Now, खूब सारी इंग्लिश हो गई, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लगेगा। Let's say if I ask you to get me an answer to this, excitation energy of third state of hydrogen atom. Now, can you read the definition and get me the answer? Try करो। हाँ, third state would mean third orbit only.
नहीं राजवीर, आपने थोड़ा सा एरर करा है, उसको फिगर आउट करो. खुश दुर्गेश आपका करेक्ट है. नहीं चित्राक्ष. हाँ, यश रियल आपका करेक्ट है. दिव्या महक नहीं, नॉट करेक्ट. प्रतीक प्रणव नॉट करेक्ट. कार्तिक आपका भी करेक्ट नहीं है. दर्शन पूर्वा लाइक क्लोज इनफ, बट थोड़ा सा और एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हो आप. इस अच्छा चलो, आपने क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करा. एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? This means that we need to provide energy to excite the electron from ground state, that is n equal to 1, to that state. What is that state over here? The third state, that is the third orbit. तो इनका बीच का energy gap जो है, that is the energy that we need to supply. So you simply come up with the calculation. Delta E is equal to E final minus E initial, and then you put the values. You get the answer as plus 12.09 EV. ठीक है, समझ में आया ये? Yes. So can you explain the difference when we say, as in when it was in the second orbit we were saying first, when it was in the third we were saying second, so what was that? नहीं. So that thing is only and only when we write the word excited state. ठीक है, second excited state would be third orbit. ठीक है, if I use the word orbit, shell, energy level, ठीक है, या state, energy state, state बोल लूं या energy state बोल लूं, they are all synonymous. They all mean the same thing. ठीक है. So if I say second shell, मतलब second orbit. ठीक है. If I say third state, that I mean third orbit. अब इन्हीं में अगर मैं excited word यूज कर लूं, तो इसका मतलब फिर आपको अवेयर होना पड़ेगा. ठीक है. एंड एक्साइटेड वर्ड टिपिकली लाइक एनर्जी के हिसाब से यूज करा जाता है. तो टिपिकली इन तीन के अगेंस्ट एक्साइटेड वर्ड यूज करा जाता है टिपिकली. सो इफ आई से एक्साइटेड स्टेट इज से द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्बिट. ठीक है. तो ये वर्ड आपको क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अब जैसे यहाँ पर व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, इसमें वर्ड यूज करा है विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन. राइट. तो आपने जो ऑर्बिट नंबर निकाला n = 2, दैट वुड करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. अभी जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे पुट करा था, दैट थर्ड स्टेट का मतलब क्या हो गया? जस्ट सिंपल थर्ड ऑर्बिट. थैंक यू. ठीक है. एंड इस चीज को जैसे यहाँ पे मैंने वापस से एड्रेस भी करा है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, it would mean the same thing if I say excitation energy of the second excited state of hydrogen atom, because second excited state means the third state. समझ में आया अभी? हाँ सर, थैंक यू. अच्छा, अब इसमें नोटिस करना एक और छोटा सा ट्विस्ट रहेगा. वो ट्विस्ट कैसा है? द सेम थिंग जो मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम,
या excitation energy of second excited state of hydrogen atom can also be called as second excitation energy of hydrogen atom. Now, what does that mean? What do I mean by second excitation energy of hydrogen atom? How do I interpret that? तो नोटिस करना, अभी एक्साइटेशन जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, that is jumping from ground state to higher energy level. That is what we are talking about as excitation. So मेरा इलेक्ट्रॉन naturally ground state पे present रहेगा and it can excite to higher energy levels. 1 से 2 जा सकता है, 1 से 3 जा सकता है, 1 से 4 जा सकता है, 1 से 5 जा सकता है and so on so forth. So इसमें अगर मैं इनको नीटली अरेंज करके लिखना चाहूँ तो एक नोमेनक्लेचर क्रिएट हो जाता है. कैसा? आप नोटिस करना, इस फर्स्ट एक्साइटेशन को मैं कैसा बोल सकता हूँ? लाइक दिस कैन बी कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट or excitation energy of first excited state, or it can be called as first excitation energy. That is the first excitation that can happen from 1 to 2. Similarly, ये जो second यहाँ पे मैंने draw किया हुआ है 1 से 3 का जो excitation है, it is corresponding to excitation energy of third state or excitation energy of the second excited state, or it can be also called as the second excitation energy. ठीक है, जो nomenclature में हम लोग बोल रहे हैं, ये first excitation energy हो गया, ये second excitation energy हो गया, ये third excitation energy हो गया, and so on so forth. ठीक है, so ये एक term भी आपके सामने आ सकता है, कम chance है but आ सकता है. Say if I ask you something like this, second excitation energy of hydrogen atom, तो आप कैसे फिगर आउट करोगे इस क्वेश्चन के बारे में? आप बोलोगे अच्छा हाइड्रोजन एटम मतलब Z = 1, ठीक है. देन एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में बात करा जा रहा है, मतलब मुझे N = 1 से कहीं जंप करवाना है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से कहीं हायर एनर्जी लेवल पे जंप करवाना है, और उसमें बोला जा रहा है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी. तो फिर यहाँ से मैं फिगर आउट करूंगा दैट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी वुड बी जंप फ्रॉम N = 1 to N = 2. The second excitation energy will be jump from N = 1 to N = 3. इस तरीके से आपको ये वर्ड्स को, ये टर्म्स को डिसाइफर करना रहेगा इन क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग में दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है, बिकॉज नया नया टर्म सीखते हैं एंड हाथों हाथ क्वेश्चन में अप्लाई करने में इतना आसान नहीं लगता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आज के आज पढ़ाया, अभी के अभी पढ़ाया और एकदम सब कुछ याद हो गया. जैसे जैसे हम इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 10 12 15 क्वेश्चन इनके देखेंगे, तो आपको इन टर्म्स की भी धीरे धीरे आदत होती चली जाएगी. एंड देन इन फ्यूचर जब भी इन टर्म्स को रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, you would be able to recall what that term meant and accordingly solve the question. ठीक है. So let me make you practice some more questions. Let's say क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें काफ़ी सारी टर्म्स का रिकैप हो जाएगा जो हमने ऊपर पढ़ी हैं. एक एक करके फिगर आउट करो, एंड बीच में कुछ भी डाउट हो, कोई भी टर्म हो तो पूछ लो जो आपको समझ में नहीं आया हो. सर H-like सिस्टम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल रहे हैं? हाँ, करेक्ट.
सो ए ऑप्शन में बेसिकली आपको Z निकालना है. बेस्ड ऑन दैट यू वुड बी से कि कौन सा टाइप का सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये. ए पार्ट का आंसर खुश का और ध्रुव का सही है. बी पार्ट का भी सही है, खुश और ध्रुव का. बाकी लोगों का अभी तक सही नहीं आया है. हाँ, प्रणव का ए पार्ट का आंसर ठीक है. सो ए पार्ट का आंसर है लिथियम 2+. यहाँ पे आप देखो, रीड करो ना क्वेश्चन को. सेकंड एक्साइटेड स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है? थर्ड ऑर्बिट. थर्ड ऑर्बिट. उसका बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है 13.6 सीवी, यानी कि the amount of energy required to take the electron from n equal to 3 to n equal to infinity is 13.6 CV, right? So based on that, अब आप कंप्यूट करोगे that कितना z का वैल्यू होगा, right? Final minus initial, final is 0 and initial is 13.6 into z square by n square, and इससे आप कंप्यूट करोगे तो z का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा. z का वैल्यू 3 आ गया, मतलब द सैंपल इज Li2+ आयंस. ठीक है, तो ये ए पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा. अब आप बाकी BCD पर भी वर्क करो. हाँ, बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी सेम ही था ना जो मैंने बताया ऊपर आपको.
सेकेंड पार्ट का आंसर भी आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ आयन आपको निकालना है, तो यू जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। क्या था डेफिनेशन आपका? n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी ले जाना है, तो 122.4 eV आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर क्या है? थर्ड पार्ट इज एनर्जी of photon required to cause the excitation from second to third state. Second to third state मतलब second orbit से third orbit ले जाना है, right? तो यहाँ पे अब आप वर्कआउट करो, 2 से 3 का एनर्जी गैप कितना है? यू यूज द फॉर्मूला and it comes out to be 13.6 into 5/4, right? Around 17 eV. ये समझ में आया थर्ड पार्ट भी? Yes, sir. ठीक है, व्हाट अबाउट द लास्ट पार्ट? आपका ठीक लग रहा है यश, ऑलमोस्ट आई थिंक करेक्ट ही है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2 और ग्राउंड स्टेट हो जाएगा n इक्वल टू 1। सो आपने कैलकुलेट करा, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 जंप कर रहा है तो व्हाट इज द एनर्जी गैप? changes E final minus E initial, right? Always follow the convention, final minus initial, and यहाँ पर ये change negative आ जाएगा, but that's okay. Negative sign would mean that it is the energy released, the photon is actually emitted. तो आप मैग्नीट्यूड से इक्वेट करोगे उसको, एंड ये अराउंड 135 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा आपका। ये लास्ट वाला पार्ट समझ में आया? Sir, could you please show the third part? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं देखो, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना दुर्गेश, कैसे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, क्या कैलकुलेशन करवाई जा रही है। Okay, sir. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये टर्म्स यूज करने कैसे हैं वो समझ में आ रहा है?
सो बोर्स मॉडल में अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया है, समझ लिया है, आप नोटिस करना। बोर्स मॉडल में वी हैव सीन अ सेट ऑफ रियली सिंपल क्वेश्चंस, जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपको सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना होगा, रेडियस का, स्पीड का, एनर्जी का, एंड देन यू विल हैव टू गेट द आंसर्स। थोड़ा सा और डिफिकल्टी कैसे बढ़ाया अपन ने, rather than just formula substitution questions, there were questions जिसमें अपन ने कंपैरिजन करा। ठीक है, इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में we did some comparison कि इस केस में this is the value of kinetic energy, तो दूसरे केस में क्या होगा, एंड वो प्रोपोर्शनैलिटी एक्सप्लोर करके हमने फटाफट आंसर्स निकालने का प्रैक्टिस किया। देन फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमने बनाया, दैट रादर देन यूजिंग जस्ट R, V and E का relationship, can we also use some other properties? Can we also ask about some other variables like time period या frequency of revolution, which are dependent on the basic ones that we have done in the class? उनको आप relate करके मुझे आंसर बता सकते हो क्या? ठीक है, देन हमने और डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाया, बाय इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन टर्म्स, राइट। ये टर्म्स हमने आज सीखी, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इनको कैसे क्वेश्चन में यूज करना है वो भी आपने अभी थ्रू मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अब एक और टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने फीचर हो जाते हैं, ठीक है, बोर्स मॉडल में, विच आर ग्राफ बेस्ड। नाउ ग्राफ्स के बारे में आप लोगों को एक बेसिक आइडिया में देना चाहूँगा, जो हमारे पास अभी है, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं क्लास के। लेट मी यूज दैट इन हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड सम बेसिक ग्राफ्स। ठीक है, सो गिव मी जस्ट 1 मिनट। मैंने आई थिंक जेनिथ 1 में किसी तो सेशन में करवाया था, लेट मी जस्ट फिगर आउट। पहले ही करवाया था, अब्दुल्ला वाले में करवाया था, हाँ ये वाले में करवाया था। ठीक है, सो लेट मी पिक अप दीज सम बेसिक ग्राफ्स। 3 ग्राफ्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, एंड दिस वुड बी समथिंग दैट वी विल बी यूजिंग in not just booklet but also in some test questions also. ठीक है, just give me 2 minutes, I'll just take it up there. आपको एक बेसिक आइडिया तो ग्राफ्स का होगा ही, सही ना? मैथ में आपने ऐसे y वर्सेस x, राइट, समथिंग वर्सेस समथिंग का ग्राफ बनाया होगा। समथिंग वर्सेस समथिंग के ग्राफ में एक कन्वेंशन रहता है कि पहला समथिंग जो रहता है वो हमेशा y एक्सिस पे लिखा जाता है, एंड दूसरा समथिंग जो होता है वो हमेशा x एक्सिस पे लिखा जाता है। ठीक है, नाउ नोटिस करना, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x इज, वी कैन नोटिस सम कॉमन ग्राफ्स। सो सबसे पहले मैं आपके साथ में लीनियर ग्राफ डिस्कस करूंगा। लीनियर ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स between the two variables y and x. Now दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर ग्राफ कब बनता है? when there is a direct proportionality between the two, right? हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, that y is directly proportional to x. तो कैसा रहेगा? y और x के बीच का ग्राफ लीनियर रहेगा।
इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. से y is equal to kx where k is some constant of proportionality. ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लो मैं k का वैल्यू 1 ले लेता हूँ एंड फिर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, प्लॉट करना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा? x की वैल्यू 0 पर y 0 रहेगा, x की वैल्यू 1 पर y 1 रहेगा, x की वैल्यू 2 पर y 2 रहेगा. इन डॉट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये कैसा दिख रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, Straight. राइट? सो दिस इज a linear graph. Acha, sometimes rather than just writing the proportionality y is equal to kx, we might also want to write y is equal to kx plus c. ये वाला फॉर्म भी आपने कभी देखा होगा, a relationship between y and x. तो ये वापस कैसा है? It's a direct proportionality straight line relationship between y and x. ठीक है, k and c are the constants. ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल लेट से k का वैल्यू मैंने 2 ले लिया और c का वैल्यू 1 ले लिया, तो कैसा प्लॉट रहेगा? x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी रहेगी? 2, सॉरी 1, 1. है ना? ये इस इक्वेशन में आप पुट कर रहे हो ना, x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 1 रहेगा, x इक्वल टू 1 पे कितना रहेगा y? यू कैन सी द वैल्यू विल बी 3. ऐसे ही आप x इक्वल टू 2 डालोगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा. 5. ठीक है, लाइक यहाँ पर आप x का वैल्यू 2 डालोगे तो करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरीके से आप ये कनेक्ट करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन रहता है उसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो आई विल वांट यू टू बी यू नो ऑन द सेम पेज विद मी. एक तो कहलाता है स्लोप. ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा? द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस. ठीक है, उसका जो टैन रहेगा, ये जो एंगल यहाँ पे लाइन मेक करेगी विद द एक्स एक्सिस, उसका जो टैन रहता है, टैन थीटा, उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं. ठीक है, ये आपने सुना हुआ होगा ना, इतना तो बचपन में आई थिंक पढ़ा होगा. Yes, sir. ऐसा तो नहीं ना कि लाइक कि सर ये टैन क्या होता है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ. इज देयर एनीवन अमंगस्ट अस हु हैज नॉट सीन दिस बिफोर? ग्रेट, ऐसा तो कोई भी नहीं है. सो ये स्लोप जो है टैन थीटा, वो किसके बराबर रहता है? वो k के बराबर रहता है. ठीक है, जो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी, एंड ये जो c है ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट, जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा होता है. ठीक है, जहां पर ये लाइन जो है y एक्सिस को कट कर रही होती है उसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं. दैट वैल्यू इज एक्चुअली c. तो ये बेसिक ग्राफ बनाना आया आपको? बेसिक इक्वेशन समझ में आई? I do not understand the meaning of slope. हाँ, The slope means something. बेसिकली जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, ठीक है, तो वो ग्राफ में ऐसे लाइक कम स्लोप भी हो सकती है, थोड़ी मॉडरेट स्लोप भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा स्लोप भी हो सकती है. ये सब स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स ही है ना. तो जो स्लोप होता है दैट इज द tan of the angle, tan value of the angle that the line makes with the x axis. ठीक है, तो जब हम मैथमेटिकली इक्वेशन लिखते हैं y is equal to kx plus c, तो उसमें जो k का वैल्यू होता है वो हमारा स्लोप होता है. ठीक है, आपको डिराइव भी करके बताएंगे जब आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ोगे आगे. ठीक है, तो उसमें वो डिराइव भी करके बता देंगे. टिपिकली जब आपके सामने ऐसा इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी, तो उसमें जो x का कोफिशिएंट रहेगा दैट इज व्हाट इज द स्लोप. क्लियर है दुर्गेश? Yes, sir. हाँ, बोलो नैन.
So, like before this, you said that in the graph, we always write it as y first and then x. हाँ. So, something versus something. So, but whenever we say like graphs in physics or anything, displacement time graph or anything, so we write the x one first, right? Or my question basically is that we can interchange the x and y axis also, right? So why is it compulsory to write the y-axis first and x later? नहीं, इट्स आप इंटरचेंज कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, बट मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटोन एंड फ्रीक्वेंसी। लेट्स से ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो बाय डिफॉल्ट द कन्वेंशन दैट वी टेक इज जो पहला लिखा होता है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, जो दूसरा लिखा होता है उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू Okay. that is the normal convention। कभी भी क्वेश्चन में आएगा ड्रॉ समथिंग वर्सेस समथिंग का ग्राफ, तो पहला समथिंग को वाई एक्सिस पे लेना, दूसरा समथिंग को एक्स एक्सिस पे लेना, ठीक है। And so here in the question above where you've taken k as 2 and c as 1, there's no calculation to it right now, right? We've just seen the sequence as in 1 is corresponding to 3, 2 is and like 0 is corresponding to 1, so 2 will correspond to 5. हाँ हाँ, सो अभी क्या हो रहा है देखो, एज सच आप मैथ्स में एक पूरा चैप्टर पढ़ते हो कॉल्ड एज फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ठीक है। मैथ्स में ये अपने आप में एक चैप्टर होता है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। देन आप मैथ्स में अलग से एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम होगा स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, और आप स्ट्रेट लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करोगे। एक अलग से चैप्टर रहेगा कॉल्ड एज पैराबोला, एक अलग से चैप्टर रहेगा हाइपरबोला, ठीक है। वैसे उनको चैप्टर या सब चैप्टर भी बोल दो, क्योंकि ये सब एक मदर टॉपिक कहलाता है, कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेट मैथ्स। एक्चुअली कोऑर्डिनेट मैथ्स के अंदर ये सारे सब टॉपिक आते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, मैं इतना डेप्थ में नहीं जा सकता, एक एक चीज को डिटेल में नहीं बता सकता, राइट। बट ये ग्राफ्स जो होते हैं ये बहुत यूजफुल रहते हैं, ये आपको फिजिक्स में एज वेल एज अभी केमिस्ट्री में भी कई जगह पर काम आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर रहना चाहिए, एंड दैट इज वेयर आई एम पुटिंग दिस एफर्ट कि हम लोग ग्राफ्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, एंड देन बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग वी शुड बी एबल टू देन आंसर सम बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो 3 सिंपल ग्राफ्स हैं जिन पे मैं आपके साथ में फोकस करना चाहूंगा, दे आर लीनियर ग्राफ्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, ठीक है। ये क्या ग्राफ्स होते हैं, इनकी इक्वेशंस जो होती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होती हैं y और x के बीच में, वो कैसी दिखती है, वो मैं आपके साथ में सिंपल केसेस, सिंपल सिनेरियोस डिस्कस करना चाहूंगा। एंड आई विल बी प्राइमरीली फोकस्ड ऑन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ्स ड्रॉ करने में, ठीक है। अदरवाइज ग्राफ्स जो होते हैं वो चारों क्वाड्रेंट में ड्रॉ करे जा सकते हैं ना, आपने देखे होंगे ना। This is called as first quadrant, this is called as second quadrant, this is third, this is fourth, right? तो अभी के लिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपके साथ में इन ग्राफ्स का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। आपका अभी मैथ्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्वाड्रेटिक। तो आपको ये पैराबोला तो सिखाया होगा ना, अभी पैराबोला ग्राफ्स ड्रॉ करने सिखाए हैं? Yes, हाँ सर। यस सर। तो आपको काफी सारी चीजें देखो ऑलरेडी आती हैं, बट आई जस्ट वांट टू बी ऑन द सेम पेज। तो मैं एक डेडिकेटेड टाइम स्पेंड करना चाहूँगा ऑन दीज ग्राफ्स, सो दैट आगे क्वेश्चंस इनमें अगर आएंगे या हम लोग देखेंगे तो वी आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड दोज ग्राफ्स, वी आर एबल टू रीड दोज ग्राफ्स, ठीक है। अभी के लिए रुक जाता हूँ, एक्चुअली 9:30 हो ही गया है,
वी आर क्लोज टू द एंड ऑफ आवर क्लास टुडे. ऐसा करता हूँ कि कल का जो डाउट सेशन रहेगा उसमें आई विल पिक दिस अप. उसमें आई विल टॉक अबाउट दीज ग्राफ्स एज वेल एज सम बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज ग्राफ्स. ठीक है. सो कल के डाउट Okay, सेशन sir. अटेंड करना. ऐसा नहीं डाउट सेशन है तो मतलब छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे. प्लीज अटेंड कंपल्सरीली. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो मुर्तजा? Yes, sir. I actually have a doubt. Should I ask it tomorrow or right now? बुकलेट में से ही है. What, sir? मतलब कॉन्सेप्चुअल डाउट है या बुकलेट में से है कुछ क्वेश्चन का? Yeah, sir. There's a question from the homework assignment that you got. तो वो तो मैं कल डिस्कस करता हूँ ना. Okay, sir. No problem. ठीक है. Thank you. एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I had a doubt. हाँ हाँ बोलो. सर वो आपने एक बताया ना पोटेंशियल एनर्जी वाला हमने क्वेश्चन दिया था हम लोग को. सबसे स्टार्टिंग में ये वाला. यस सर, दिस वन. हाँ. यानी इसके नीचे वाला. इसके नीचे वाला ये. जिसमें सर वो एक्साइटेड स्टेट वाला था एक नीचे. एक्साइटेड स्टेट वाला मतलब ये वाला क्वेश्चन. तो जिसमें हम इसको पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 into ke. इसमें कौन से पार्ट में पोटेंशियल सर एनर्जी? ऊपर कौन सा वाला पार्ट कह रहे हो? यस सर, ये आलो ऊपर वाला बस जस्ट यार. हाँ हाँ हाँ. इसमें हम सर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं -13.6 वाला. मतलब पता नहीं टोटल एनर्जी क्यों निकाली इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं. नहीं मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टोटल एनर्जी निकालो. आप सीधे पोटेंशियल एनर्जी से भी कमेंट कर सकते थे कि एन का वैल्यू 2 है. -13.6 वाला फॉर्मूला लगा के. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल. मतलब मैंने तो टोटल एनर्जी इससे निकाला बिकॉज जनरली बच्चों को टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला याद रहता है. तो मैंने कहा कि ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी से टोटल एनर्जी निकाल के फिर फॉर्मूला लगा के एन का वैल्यू निकाल देते हैं. तो ये 13.6 का फॉर्मूला सिर्फ ये टोटल एनर्जी के लिए होता है क्या? मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं खा सकते हैं इससे. समझा नहीं मैं. आपको करना क्या है? अरे 13.6 वाला जो फॉर्मूला है -13.6 वाला है फॉर्मूला जो ये सिर्फ मतलब टोटल एनर्जी के लिए होता है. हाँ. जो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए. क्लियर हो जाएगा. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. ये रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमने बोर्ड मॉडल में सीखे थे. इसके अलावा मैंने आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था -13.6 Z²/n² इन द यूनिट्स ऑफ EV. ठीक है. अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है तो ठीक है आप इसको यूज कर लो. इट विल बी +13.6 Z²/n² EV. अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है तो आप ये रिलेशनशिप यूज कर लो. सो -2 × 13.6 × Z²/n² EV. यस इंपॉर्टेंट. है ना? ऑलराइट. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. तो फिर ये ग्राफ वाला पार्ट्स मैं आप लोगों के साथ में एक बार कल के सेशन में ही कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है. लेट मी डिस्कस दिस क्योंकि इसमें लगेगा टाइम लग जाएगा. वी विल नीड टू प्रैक्टिस ऑल्सो साथ में ताकि फिर आप क्वेश्चंस भी देख सको. ठीक है. चलो ऑलराइट. थैंक यू गाइस. Thank you, sir.